MiG-21 भारत का इकलौता ऐसा फाइटर प्लेन जो कई वर्षों से भारतीय सेना का, भारतीय एयरफोर्स का पराक्रम और शौर्य बढ़ाते आ रहा है। लेकिन कई सारी घटनाएं इसके साथ ऐसी भी जुड़ी हैं जहां पर इसे फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनव चौधरी के जाने के बाद बहुत सारी चीजें जो लोगों के दिमाग में बार बार आ रही हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो सिंस 1971-72 तकरीबन 400 से अधिक MiG-21 क्रैश हुए हैं। इसी वर्ष तकरीबन 3 MiG-21 क्रैश हुए हैं, जिसमें फॉर्चुनेटली एक पायलट बच गए थे, लेकिन एक अपनी जान दे बैठे और दूसरे हमारे अभिनव चौधरी थे, जो विगत 21 मई को रूटीन सॉर्टी पर निकले थे, लेकिन वापसी में कहा जा रहा है कि इनका विमान क्रैश हो गया था। दोस्तों, इसी बारे में अधिक बात करने के लिए, अधिक जानकारी जुटाने के लिए हमने बात की रिटायर्ड एयर मार्शल देवेंद्र सिंह रावत जी से। आइए सुनते हैं क्या उनका कहना है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। नमस्कार सर, मैं त्रिभुवन चौहान। कैसे हैं आप सर? बढ़िया। अच्छा सर, मैं तो आपको जानता हूँ, वैसे हमारे व्यूअर्स भी आपको जानते हैं, पर फिर भी मैं सोच रहा था कि अगर 2 लाइन आप अपने बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे प्लीज। Yes, Tribhuvan, I am a veteran Air Force officer, and I have retired 2 years back, and I have flown MiG-21, which is so much in news nowadays. I have done more than 4,000 missions on that aircraft. Oh, great sir, great. सर, जैसे हमें पता है सर, स्क्वाड लीडर अभिनव चौधरी के बारे में, ही वाज ऑन अ रूटीन सॉर्टी और ये हम सबको छोड़ के चले गए सर ऐसे में ना। तो सर ये मैं जानना चाह रहा था कि ये रूटीन सॉर्टी का प्रोसीजर क्या होता है सर? Tribhuvan, as a fighter pilot, you are always training. Right sir. So Abhinav, who must have had around 7 years of service, and was an operational pilot, posted in a unit which is in Rajasthan, northern Rajasthan. Sir. So he would have been doing night training, and night has got a lot of missions. In this particular day, he was doing a training mission to a range in Punjab. We have got a firing range in Punjab, and he had gone to carry out a dummy strike sortie over that range. Sir. So he had done that mission, already finished that what he was training he was supposed to do, and I believe the accident happened when he was returning from the mission. Oh, okay, okay. सर, जैसे ये क्रैश के दौरान सर, जैसे इजेक्शन का प्रोसेस फॉलो करने की गाइडलाइन भी होती है सर, आपको क्या लगता है कि वो इजेक्शन प्रोसेस कैसे नहीं कर पाए होंगे वो पूरा? इजेक्शन का every mission before we get airborne, we go over the actions as we are supposed to take in case we have to eject. Sir. It is part of our daily training. So ये इंग्रेंड होता है ट्रेनिंग में कि अगर सिचुएशन अगर डिमांड करती है तो विदाउट हेसिटेशन वी शुड बी एबल टू इजेक्ट. बट what happens is that if you have, as I don't have direct information, but whatever information I have, probably Abhinav's engine had quit. Oh. So once engine fails in a single engine aircraft, so it is a critical emergency. Sir. So what happens is, depending on the height and speed that you have at that particular time, you try to restart the engine in the air. Sir. And I'm sure he would have been trying to restart the engine. And however, during the restart, also there is very clear-cut guidelines that at what height, because continuously you lose height once you have lost your engine. So true. So therefore, it is very clearly laid out that at what height, if your engine has not picked up, then you are supposed to eject.
But what was the exact situation in the cockpit at that particular time? Sir, it is very, it will be wrong to presume, sir, for me or for anybody. Yes, sir. So why he could not carry out safe ejection? I am also believed to understand that with his experience and the good pilot that he was, he would have followed the SOP totally. I am sure he would have tried to relight the engine, and thereafter, if it was not successful, then he would have tried. उसने कोशिश जरूर करी होगी फिर इजेक्ट करने की एट द करेक्ट हाइट, जो लेट डाउन है कि किस हाइट पे उसमें इजेक्ट करना चाहिए. अब उसमें सक्सेस क्यों नहीं हुआ, इज वेरी डिफिकल्ट टू से sitting here. The court of inquiry, I am sure court of inquiry will bring out the truth. Those so true, sir. It is under inquiry, sir. Sir, yeah. जैसे अभी you also mentioned that maybe the engine failure could have been one of these issues. तो yeah. जैसे we have got now MiG-29 है हमारे पास, Tejas है हमारे पास, Su-30 is there, Mirage, Rafale is also there now. So why do we still stuck on MiG-21 या फिर MiG-21 को ही क्यों हम प्रेफरेंस कर रहे हैं? बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज दैट हर एयरफोर्स में एक मिक्स होता है. कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ पुराने हो गए होते हैं, और कुछ होते हैं जो ज्यादा पुराने होते हैं. और ये ट्रू है उन देशों के लिए भी जिनके जो खुद अपने सारे एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जैसे यूएस एयरफोर्स और से चाइनीज एयरफोर्स. वहां पे भी कुछ एयरक्राफ्ट पुराने होते हैं, क्योंकि कोई भी ना सारे एयरक्राफ्ट नए नहीं उड़ा सकता सारे टाइम. हमारे पास भी अगर आप कुछ साल पहले जाओगे तो MiG-21 हमारे फ्लीट का मैक्सिमम स्क्वाड्रन्स MiG-21 स्क्वाड्रन्स होती थी. अब धीरे धीरे करके MiG-21 स्क्वाड्रन प्रॉब्ली 3-4 स्क्वाड्रन बची होंगी. अब कहाँ हमारे पास 20-25 स्क्वाड्रन होती थी, अब 3-4 स्क्वाड्रन है. सो बाकी सब स्क्वाड्रन विद टाइम एज द एयरक्राफ्ट की लाइफ खत्म होती गई, हम उसको एयरक्राफ्ट को मॉथबॉल करके हमने उनको मतलब उड़ाना बंद कर दिया. तो सर अब आप कह रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं ये लोग? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन LCA प्रोग्राम भी हमारा काफी डिले हुआ है. और लेकिन अब LCA आने लग गया है. वो अपना खुद का बनाया हुआ जहाज है, अच्छा जहाज है, लेकिन वो जब तक सफिशिएंट नंबर में नहीं आ जाता तब तक सारे MiG-21 को हम हटा दें तो उससे मतलब जो 3-4 स्क्वाड्रन बची हैं केवल, अगर उनको भी हटा दें तो उससे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी में. तो वो सब दोनों को मिक्स देखना पड़ता है. कोई भी नहीं चाहता कि पुराने एयरक्राफ्ट फ्लाई करें, सब नए एयरक्राफ्ट चाहेंगे, लेकिन ये है कि मजबूरी है, थोड़ा बनाना पड़ता है. लेकिन इट डज नॉट मीन कि एयरक्राफ्ट विल बी अनसर्विसेबल व्हेन इट विल फ्लाई. जब फ्लाई करेगा तो पूरी तरह से सर्विसेबल होगा. और सिंगल इंजन में क्या होता है कि सिंगल इंजन जो जहाज होते हैं उसमें अगर एक इंजन है और वो क्विट कर गया तो इट बिकम्स क्रिटिकल इमरजेंसी. जो मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं, जो 2 इंजन वाले, जैसे सुखोई और जैगुआर और वेस्टर्न एयरक्राफ्ट जैसे F-15, F-18, ऐसे बहुत जहाज होते हैं, तो उनमें भी कई बार एक इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो एयरक्राफ्ट अपने सेकंड इंजन पर रिकवर कर जाते हैं. लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कारण है सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, तो क्या ये कारण है सर, इसको हम फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं काफी समय से? नहीं, फ्लाइंग कॉफिन तो एक टर्म है जो बहुत पहले किसी ने इंट्रोड्यूस कर दी थी. उसके बाद में मैंने इस जहाज को 1000 से ज्यादा सॉटियां उसके बाद करी थी फ्लाइंग कॉफिन में. अच्छा. तो ये तो फ्लाइंग कॉफिन बोलना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उस जहाज को बहुत दिनों तक अभी हम उड़ाएंगे. एटलीस्ट 2-4 साल तो मेरे ख्याल से कम लगेंगे, जब तक कि LCA पूरे नंबर में नहीं आ जाते. उसके बीच में हमारे बहुत सारे पायलट्स, अभिनव की तरह बहुत सारे यंग पायलट्स एंड एक्सपीरियंस पायलट्स उसको फ्लाई करते रहेंगे. और जब वो फ्लाई करें, उनका मनोबल को फ्लाइंग कॉफिन बोल के तोड़ना इज ऑल्सो नॉट राइट. Airforce will definitely like to fly new aircraft, not because it is very old, but also because new aircraft are more capable. Each LCA is जो है वो MiG-21 बाइसन से बहुत कैपेबल है. सो हम तो नए से नया जहाज इसलिए भी उड़ाना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत कैपेबल जहाज होते हैं, नए जितने होते हैं. सही बात है, अपग्रेड करना चाहता है आदमी. हाँ, सब अपग्रेड करना चाहते हैं. खास करके जैसे ये एयरक्राफ्ट बाइसन भी वैसा MiG-21 नहीं है जिसको सबसे पहले जब मैंने 1981 में MiG-21 उड़ाया था उसमें और बाइसन में जमीन आसमान का फर्क है. ये बाइसन जो है बहुत काफी
लेटेस्ट एवियोनिक्स के साथ मॉडिफाइड जहाज है, लेकिन ये इसका जो एयरफ्रेम है, इसका जो बेसिक इंजन है, ये तो पुराना ही है, वो तो चेंज हो नहीं सकता था। लेकिन बाकी सब कुछ इस जहाज के अंदर नया है। अच्छा अच्छा। So आपने भी like you had been with Indian Air Force for quite a long time, and you must have seen many such casualties in the past also. And so, how do you like put up your condolences towards the family? And see, for us who have been in uniform for 40 years, and I was in uniform for 40 years, for me losing Abhinav, a young pilot and such a handsome and good pilot, losing him is like losing your own brother, losing your own son. Sure. You know, it is like that. And I am totally, I just don't have words. What words can I say to his father, his family, his wife? He was just married. He was newly married. I have deepest condolences, and I just pray to God that God gives them strength to deal with this tragedy, because it is something nobody can be prepared for. So मेरा तो उनके साथ पूरी सिंपैथी है, बट आई होप दे उससे उबर जाए, उनकी वाइफ, पेरेंट्स जल्दी से। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। And Indian Air Force will always remember him as a very good pilot. बिल्कुल सर, very good pilot. We all Indian would remember him for this. Yeah, and he had a copybook career. He was from Royal Indian Military College. Very few officers come from RIMC, and they all do very well. In my own course, I had few officers from RIMC, and they were exceptionally good officers and pilots. So similarly, Abhinav would have done very well, except that God had some other scheme for him. So we'll always miss him. God bless the family and give them strength. And God bless the family. Yeah, as you said, God bless the family. Right. Thank you so very much for your time, sir. Thank you, Tribhuvan. Right. तो जैसा हमने रावत सर से भी सुना कि एक ऐसा इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली जरूर होता है, लेकिन क्या कुछ उसके पीछे समीकरण हो सकती हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी। एक ऐसा व्यक्ति तो हमारे बीच से गया है जो 2 साल पहले सुर्खियों में थे कि उन्होंने अपनी शादी में केवल 1 रुपया दहेज लिया था, और तमाम देश भर के न्यूज़पेपर ने उसको हेडलाइंस भी बनाया था। दोस्तों, यह दिखाता है कि RIMC से निकला हुआ एक कैडेट जिसने जिंदगी भर बहुत मेहनत की और अपनी टीममेट्स और अपने सीनियर्स का हमेशा नाम ऊंचा किया, आज वो हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, आज हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। मैं सब तमाम देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता हूं कि परिवार को धैर्य, सामर्थ्य दे, लेकिन अभी के लिए एक मौन दिल से उस व्यक्तित्व के लिए जो आज हमारे बीच नहीं है। और मैं तमाम देवी देवताओं से पुनः आग्रह करूंगा कि इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देवें। जय हिंद, जय भारत।